Good morning, students. Myself Priyanka Mahale, and I'll be taking bookkeeping and accountancy for you all. Before I start, a big congratulations to you all who have cleared your SSC exam, and also I hope you all are doing well and staying safe at home to avoid this COVID-19 infections. Okay, so before we start with the syllabus, let me tell you that because of this COVID-19 situation, our board, the Maharashtra board, has reduced the syllabus by 25%. So, in this year, okay, only for this year, you will be having less syllabus, okay. So, if you see the syllabus, okay, the syllabus which has been provided by the Maharashtra board, there is not much change, मतलब इतना सारा changes नहीं है इसमें. Only there are few chapters which they have given for self study, and few things which are even not necessary, which are not included also, those things they have reduced for this year. Okay, so let's see what they have reduced. This is the syllabus copy which government has provided, Maharashtra board has provided for 11th commerce, bookkeeping and accountancy, only for this academic year, that is 2021. Now from this first chapter they have reduced the matter of self study. Okay, they have given for self study, that is students activity. Okay, student activity जो है they have given for self study. Then in the second chapter, even the activity works. So almost till 1 to 8, okay, 1 to 8 chapter they have reduced the activity box. Matlab from this activity works there won't be any question asked, that is they are not evaluated matlab इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं आप लोगों को. ओके, एंड द चैप्टर 9 and 10, okay, that is bank reconciliation statement and rectification of error. Now this chapter are for your self study, मतलब you have to do it at home. Okay, so this is the reduced syllabus which they have provided for this year, that is 2021. Okay, so let's move on to the textbook. Okay, textbook पे देखते हैं हम लोग उन्होंने क्या क्या reduce किया है. So this is your textbook. Now one instruction I want to give you regarding textbook. Last year only the textbook, the new syllabus has been come. Okay, the entire syllabus has been changed of 11th standard. Okay, जो 11th standard science है, commerce है, art है, उनका last year क्या हो गया, syllabus change हो गया. So new textbooks have come in the market. Okay, तो जब आप लोग books purchase, textbook purchase करने को जाओगे तो ये ध्यान में रखना है, you have to keep it in mind that you are buying the textbook of new syllabus. Okay, ये textbook है आप लोगों का. This is the front copy of the textbook, the front page of the textbook. So be careful while buying the textbook, don't end up buying old textbook. Okay, आप लोगों को नया textbook purchase करना है और देखना है कि अंदर there are around 10 chapters. Now I will be giving you a idea about what is there in the syllabus. Okay, syllabus में आप लोगों को क्या क्या है. Now if you see your account syllabus, okay, that is bookkeeping and accountancy, ये आप लोगों को मतलब इट इज़ लाइक अ वेरी इजी सब्जेक्ट. ओके, इजी कब बनता है, व्हेन यू प्रैक्टिस. ओके, व्हेन यू प्रैक्टिस दिस सब्जेक्ट, दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट. इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, और आप लोगों को लगता है कि कई बच्चे ऐसे होंगे कि एग्ज़ाम के पहले दिन लेके बैठते हैं और उनको लगता है कि एवरीथिंग सब कुछ आ जाएगा. दिस चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है उसमें यू कैन से 30% जो है थियोरी है और 70% प्रॉब्लम्स है. ओके, कॉमर्स में ऐसा एक ये सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं. ओके,
second is maths. If you have taken mathematics, you will have problems, and and कॉमर्स में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो है अकाउंट्स में. ओके, और हमेशा याद रखना इस ये जो अपना ये है व्हाट यू कॉल, ये जो सब्जेक्ट है उसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोला जाता है. ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग फॉर द एग्जाम, यू हैव, इफ यू आर राइट अकाउंट्स एंड ऑल, योर पेपर वोंट बी इवेलुएटेड, करेक्ट नहीं किया जाएगा. तो आपको जब सब्जेक्ट का नाम लिखना है, यू विल राइट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके, सो दिस इज द टेक्स्ट बुक फॉर योर. एंड यार ये जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस दिस सब्जेक्ट विल बिकम इजी, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. एक दिन में होने वाला सब्जेक्ट नहीं है. थियरी यू कैन कोप अप, ओके, बट प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं होने वाले. प्रॉब्लम्स को हमेशा आप लोगों को ये करना है, प्रैक्टिस करना है. एंड ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए. आप लोगों ने शायद अकाउंट्स का नाम कहीं तो सुना होगा कि मेरे अकाउंट, बैंक के अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं, मेरे मोबाइल में इतना सारा बैलेंस बचा है, डेटा बैलेंस बचा है. सो दिस अकाउंट बैलेंस यू ऑल मस्ट हैव हर्ड. बट अकाउंट्स जो है, हम लोग यहाँ पे बैंक का अकाउंट पकड़ के यू विल लर्न हाउ टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस का कैसे अकाउंट्स रखेंगे वो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. एक सिंगल बिजनेसमैन, जैसे कि शॉपकीपर हो जो अकेला बिजनेस रन करता हो, या कोई भी शॉपकीपर हो, होटल पर्सन हो, या फैक्ट्री पर्सन हो, या कंपनी पर्सन हो, जिसका अकाउंट अकेला पर्सन जब बिजनेस को रन करता है और उसके अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो आप लोग वो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. ओके, सो इन योर 11th स्टैंडर्ड यू विल बी गिवन एन आइडिया अबाउट व्हाट इज देयर इन अकाउंट्स. ओके, आप लोगों को पूरा, जैसे कि आप लोग नर्सरी में जब प्ले ग्रुप में जब जाते हो तो आप लोगों को स्टार्टिंग में पूरे वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं. नो, व्हाट दे डू, दे विल स्टार्ट विथ ABCD. तो फिर स्लोली आपको स्मॉल ABCD पढ़ाया जाता है. उसके बाद वर्ड्स, 2 लेटर के वर्ड, 3 लेटर के वर्ड, ऐसे आप लोगों को पढ़ाया जाता है. फिर आप लोगों को जैसे जैसे बड़े होते हो आप लोग क्या करोगे, यू विल लर्न हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. ओके, तो वैसे ही 11th स्टैंडर्ड नाउ इट इज़ अ प्ले ग्रुप ऑफ कॉमर्स. ओके, 11th स्टैंडर्ड क्या है, आप लोगों का प्ले ग्रुप है. ओके, एंड इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन. जैसे कि आप लोगों को नर्सरी में अगर ABCD नहीं पढ़ाया होता तो आज तक आप लोग एक सेंटेंस भी फ्रेम नहीं कर सकते. सो दे से नो, व्हेन यू हैव गुड फाउंडेशन योर बिल्डिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वैसे ही आप लोगों को अपना जो ये है व्हाट यू कॉल, योर बेस शुड बी वेरी स्ट्रांग. एंड टू हैव अ गुड बेस आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड वट एवर कॉन्सेप्ट्स आर देयर. आप लोगों को अगर डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी विद द email ID विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू. ओके, तो ये आप लोगों का जस्ट मेरा स्मॉल सजेशन है कि आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना है. नाउ इन योर फर्स्ट चैप्टर यू हैव इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, you are going to learn what are the basic concepts of bookkeeping and accountancy. bookkeeping मतलब क्या है, accountancy मतलब क्या है, that you are going to learn in this first chapter. तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में से you will जो एक्टिविटी बॉक्स है, ओके, वट एवर एक्टिविटी बॉक्स है, सो लेट्स सी दिस इज द एक्टिविटी बॉक्स. ओके, तो ये जो एक्टिविटी बॉक्स है ये क्या है, इट इज़ कैंसल्ड, इट इज़ नॉट देयर फॉर योर एग्ज़ाम. ओके, आप लोगों के एग्ज़ाम को नहीं है ये एक्टिविटी. बेसिकली ये हम लोग स्टूडेंट्स को इतना देते भी नहीं हैं, फिर भी दिस इज़ नॉट देयर फॉर योर एग्ज़ाम. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज दिस एक्टिविटी, दैट इज स्टूडेंट एक्टिविटी. ये भी आप लोगों को नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट देयर फॉर यू ऑल फॉर द एग्जाम. ओके, देन
एंड द लास्ट वन, ओके, ये जो है स्टूडेंट एक्टिविटी. सो दिस थ्री थिंग्स आर नॉट देयर फॉर द एग्जाम, और ये हम लोग लेते भी नहीं हैं. आई डोंट नो व्हाई दे हैव टोल्ड दैट दे हैव reduced the syllabus. Okay, this thing is not there for you all for the exam. So in this first chapter you are going to learn the basic concepts. मतलब जैसे कि ABCD है वैसे ही बुक कीपिंग का ABCD क्या करोगे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. देन द सेकेंड चैप्टर इज मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. नाउ डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या रहता है. सो ये आप लोग अगर कहाँ भी जाओ, वर्ल्ड के कौन से भी कॉर्नर में जाओ जहाँ पे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मेंटेन होता है, ओके, वहाँ पे आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यूज़ किया जाता है. तो इट इज़ लाइक यूनिवर्सल. एवरी बिजनेस, जो भी बिजनेस है जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यूज़ करता है, तो इट इज़ लाइक अ वेरी गुड बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस. क्योंकि जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस है वही सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यूज़ करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यूज़ करते हैं. सो फ्रॉम दिस चैप्टर ये जो एक्टिविटी बॉक्स है इट इज़ नॉट देयर फॉर यू ऑल फॉर द एग्ज़ाम. तो यहाँ पे इफ़ यू सी द सिलेबस, इफ़ यू सी द सिलेबस, आप लोगों को चैप्टर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, सिंगल एंट्री सिस्टम. तो ये सारे चैप्टर में से जहाँ जहाँ पे एक्टिविटी बॉक्स है दैट इज़ नॉट देयर फॉर द एग्ज़ाम. बेसिकली उसमें से हम लोग अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे. ओके, दिस वी वर सपोज टू गिव फॉर द प्रोजेक्ट. ओके, हम लोग प्रोजेक्ट की तरह देते हैं या बच्चों को स्मॉल असाइनमेंट्स की तरह देते थे कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो. लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन वी आर नॉट एबल टू गो आउट. ओके, बेसिकली दिस एक्टिविटीज़ आर विजिट एक्टिविटीज़. यू हैव टू विजिट सम फर्म, यू हैव टू विजिट सम डिपार्टमेंट. तो ऐसा रहता था. तो ये जो है इट इज़ लाइक एक्स्ट्रा वर्क. इफ़ यू वांट टू डू यू ऑल कैन डू, बट देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन आस्क ऑन दिस. ओके, सो हम लोग सिलेबस की तरफ जाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द सिलेबस. चैप्टर में से जो एक्टिविटी बॉक्स है वो निकाले हैं. Okay, so in your syllabus you have first is introduction to bookkeeping and accountancy. Okay, जो bookkeeping and accountancy है उसमें आप लोग basic concepts पढ़ोगे. सेकेंड चैप्टर है meaning and fundamental of double entry system of bookkeeping. तो इसमें आप लोग क्या करोगे, you will learn how the double entry system of bookkeeping is maintained. नेक्स्ट जर्नल. जर्नल जो है वो जब हम लोग ट्रांजैक्शन होता है तो उसको फर्स्ट कहाँ पे एंट्री करते हैं, जर्नल में करते हैं. तो आप लोगों को मैं इन ये 11th स्टैंडर्ड में यू विल बी लर्निंग हाउ टू ड्रॉ अ जर्नल. जर्नल को कैसे ड्रॉ करते हैं. उसके बाद लेजर्स देखोगे आप लोग कि लेजर्स कैसे ड्रॉ करते हैं. देन सब्सिडरी बुक, जैसे कि business when they purchase some goods or when they purchase something they will maintain in the purchase book. okay, जैसे कि वो लोग कभी सेल करते हैं अपने गुड्स को और अपने प्रोडक्ट्स को तो सेल्स बुक में मेंटेन करेंगे. उसके बाद परचेज रिटर्न, अगर रिटर्न हुआ, सेल्स का कोई रिटर्न हुआ या कैश बुक हो, बैंक बुक हो, जर्नल प्रॉपर हो, तो वो सारा आप लोग सब्सिडरी बुक्स में पढ़ोगे. एंड नाउ वट एवर आई एम टेलिंग आई थिंक इट इज़ गोइंग लाइक अ जेट एरोप्लेन्स फ्रॉम योर हेड. ओके, आप लोगों को ये पूरे कॉन्सेप्ट्स नए नए लगेंगे. सो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगी यू विल बी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट्स. ओके, जो जो कॉन्सेप्ट्स है आप लोगों को आ जाएंगे तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट.
अभी हम लोगों का जो पासबुक है, बिजनेस का जो पासबुक है, और बिजनेस खुद से एक बुक मेंटेन करता है, वो बुक है बैंक बुक। ओके, तो बैंक बुक और पासबुक में अगर कुछ चेंजेस है, दोनों टैली नहीं होते, मतलब दोनों बराबर से नहीं आते, तो वो को उसको रेक्टिफाई करना है कि मिस्टेक कहाँ पे किया है, वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जो आप लोगों का अगर आप लोग बिग बुक्स परचेज करते हो, ओके, लास्ट ईयर यू ऑल मस्ट हैव परचेज न्यू बुक्स, ओके, आप लोगों ने अगर नए बुक्स परचेज किए और इस साल आप लोगों को वो रीसेल करना है, सेल करना है, तो आप लोगों को वो सेम प्राइस मिल जाएगा? नो, यू वोंट गेट द सेम प्राइस। वाई? बिकॉज ऑफ द यूसेज, आप लोगों ने जो यूज़ किया उसके वजह से उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो वो वही जो बिजनेस रहते हैं वहाँ पे क्या रहते हैं? मशीनरी रहते हैं, बिल्डिंग रहते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं, उनकी भी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना, वो आप लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ोगे। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी जब हम लोग पेपर लिखते हैं, ओके, तो आप लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। वैसे ही जो हम लोग जो बिजनेस में जो अकाउंटेंट रहता है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ओके, उससे भी कभी कभी मिस्टेक होते हैं। तो उस मिस्टेक, एरर मतलब मिस्टेक, मिस्टेक को कैसे ठीक करना, रेक्टिफाई कैसे करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो वो मिस्टेक्स को कैसे सही करना, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन यू हैव फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। जो बिजनेसमैन है उसका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका लाइबिलिटीज़ कितने हैं, असेट्स कितने हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन जैसे कि शॉपकीपर हो या स्मॉल बिजनेसमैन जिनको अकाउंटेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं। सो दीज आर the chapters. There are around 10 chapters for you all for your subject bookkeeping and accountancy. तो अभी इसमें से ये जो दो चैप्टर्स है, दैट इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये जो चैप्टर है उसमें से पेज नंबर 184 to 209. सो लेट्स से 184 to 209. ये देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ओके, तो यहाँ पे ये जो 184 पेज नंबर है, वेर इज 184, यहाँ से, ओके, सो पेज नंबर 184 to 209। मतलब ये पूरा चैप्टर में से जो, सॉरी, ये चैप्टर में से पेज नंबर 184 to 209, ये जो इतना पोर्शन है, ओके, टेक्स्ट बुक का जो इतना पोर्शन है, दिस इज नॉट देयर फॉर योर एग्जाम, ओके, मतलब यहाँ से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ओके। सो पेज नंबर 184, दैट इज पेज नंबर 184, ओके, आप लोगों को आप लोग देख सकते हो, ओके। तो पेज नंबर 1,
पेज नंबर 184 to 209. ओके, ये जो इतना पोर्शन है इट इज़ नॉट देयर फॉर द एग्ज़ाम, मतलब इसमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. इट इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी. अगर आपको खुद से पढ़ना है यू ऑल कैन लर्न, बट यू विल बी हैविंग ऑप्शंस. ओके, अगर वो क्वेश्चन आया एग्ज़ाम को तो यू विल बी हैविंग सम ऑप्शंस. तो पेज नंबर 184. तो ये आपके लिए क्या है, सेल्फ स्टडी चैप्टर्स है. ओके, सो ये यहाँ से 184 टिल नीचे तक आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है. ओके, सो हियर ये जो चैप्टर है यहाँ में से पेज नंबर 184 to 209. ओके, इट इज़ देयर फॉर योर सेल्फ स्टडी. नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ error. Okay, rectification of error is what, 253 to 271. So let's see 253 to 271. 253. Here सी फ्रॉम दिस. ओके, 253 यहाँ से स्टार्ट होता है. तो आप लोगों को यहाँ से क्या है, सेल्फ स्टडी है. तो आप लोगों को 253 to 271. 253 to 270. It is 270 not 271 because 271 में फाइनल अकाउंट स्टार्ट होता है. तो ये यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है. सो फ्रॉम दिस चैप्टर आप लोगों को, फ्रॉम दिस सिलेबस जो 2 चैप्टर है वो सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं. मतलब यहाँ में से आप लोगों को अगर क्वेश्चन आए तो इसके ऑपोजिट आपको ऑप्शंस आ जाएंगे. तो लेट्स सी कैसे उन्होंने दिया है. सी क्वेश्चन ये फर्स्ट वन क्या दिया है कि ये जो है इट इज़ ओनली फॉर दिस ईयर, कि ये कोविड सिचुएशन के वजह से यहाँ पे क्या हो गया है कि दे हैव रिड्यूस द सिलेबस. तो आप लोगों को कुछ रिड्यूस जैसा कुछ नहीं है, ओनली एक्टिविटी बॉक्स जो है वो रिड्यूस हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उसमें जो ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने क्या सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है, दैट इज़ देयर फॉर द ऑप्शन. मतलब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का भी क्वेश्चन आएगा. लेकिन अगर आप लोगों ने वो सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन आप लोगों को सिंगल एंट्री का भी प्रॉब्लम आता है. सो देर इज़ अ ऑप्शन फॉर दिस, दैट इज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यू हैव सिंगल एंट्री एज अ ऑप्शन, एंड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यू हैव पेटी कैश बुक एज अ ऑप्शन. ओके, सो यू आर गोइंग टू हैव 2 एग्जाम्स एंड 2 यूनिट टेस्ट. ओके, यूनिट टेस्ट कैसे है, इट इज़ यूनिट टेस्ट 1 वेयर यू विल बी गिवन सम असाइनमेंट्स. ओके, आप लोगों को असाइनमेंट्स करने हैं. उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम आ जाएगा. देन यू हैव सेकेंड यूनिट टेस्ट एंड द लास्ट फाइनल एग्जाम. ओके, एंड 1 project will be there. So this was as per last year, but now till now there is no notice from the board that you will be having project or how the exams will be conducted. No notice has been come from the board. So when we start with your हम लोग जब स्टार्ट करेंगे आपका सिलेबस, तब धीरे धीरे हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या है सिलेबस में, क्या चेंजेस है, क्या एग्ज़ाम कब होने वाले. सो ऑल दिस you will come to know as we start with the syllabus. So till then take care. Okay, stay at home and practice. Start, buy your books. Okay, if you want to start, okay, you have to buy your books. Textbook is very necessary for accounts. Okay, so see you all.